लीडरशिप का सबसे बड़ा चैलेंज दूसरों को लीड करना नहीं है, खुद को लीड करना है। आपकी टीम नहीं, आपका बॉस नहीं, आपके क्लाइंट्स नहीं, आपकी फैमिली नहीं। सबसे डिफिकल्ट पर्सन टू लीड इज यू आर, बिकॉज बिफोर यू लीड द वर्ल्ड यू हैव टू लर्न टू लीड टू योरसेल्फ। बिकॉज दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ईजी होता है माय डियर। वी ऑलवेज से टीम को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, एम्प्लॉइज को ऑनरशिप लेनी चाहिए, पीपल शुड कंट्रोल देयर इमोशंस, एवरीवन शुड स्टे फोकस्ड। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या हम खुद वो सब करते हैं जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं? Because leadership doesn't begin when you get a designation, my dear. Leadership doesn't begin when you become a manager. And leadership doesn't begin when you have 50 people reporting to you. In fact, the leadership begins the moment when you learn to lead yourself. And today I want to take you deeper into this idea through the three dimensions and my favorite one, mind, brain, and soul. Because I believe that great leadership is not just about managing people, it is about managing the person behind the position. Actually होता क्या है कि हम मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लीडरशिप को जनरली बाहर से देखते हैं। सीईओ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लीडर्स कैसे टीम को मोटिवेट करते हैं, मैनेजर्स डिफिकल्ट डिसीजंस कैसे लेते हैं, बट देयर इज अ लीडरशिप लेयर दैट नोबडी सीज। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ लीडरशिप। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है। Imagine a manager who tells his team that don't panic under the pressure. But whenever the sale number falls, he starts shouting. Take an example of a CEO who tells employees, take ownership, stay focused. But whenever something goes wrong, he immediately starts blaming someone. Take an example of a leader who says we need innovation. But whenever somebody challenges idea, he becomes defensive. तो अब मुझे बताओ, टीम क्या सीखेगी उसके वर्ड से? नहीं, टीम उसके बिहेवियर से सीखेगी। Because your team doesn't only listen to what you say, they watch what you do when things don't go according to plan. My dear, your real leadership is revealed under the pressure and when not everything is going well. Let me explain you through brain science. थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं। जब हम स्ट्रेस में या प्रेशर में होते हैं ना, तो ब्रेन का फंक्शनिंग एकदम से डिफरेंट हो जाता है। Our attention becomes narrower. We become more reactive. We may focus heavily on immediate threats rather than broader possibilities. और लीडरशिप में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सपोज योर कंपनी हैज मिस्ड इट्स मंथली टारगेट। क्या होता है उस समय पे? हमारे पास दो ऑप्शंस है। हम क्या करने लगते हैं उस समय पे? हम क्वेश्चन सर्च करते हैं, हु मेड दिस मिस्टेक, व्हाई डिडंट यू डू योर जॉब, हु इज रिस्पॉन्सिबल। करेक्ट ना? बट उसी जगह पर एक ऑप्शन 2 भी है, जहां पर लीडर बोलता है, ओके लेट्स पोज, लेट्स फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाट डेटा वी आर लुकिंग एट, what did we miss? Now have you observed same problem but different leaders ने different reactions दिए। यहाँ पे difference intelligence का नहीं है, difference है self regulation का। A leader who cannot regulate himself ना will eventually transfer his internal chaos to the organization। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ before you manage performance you must learn to manage your internal state, because your brain is not just processing the information, it is also influencing how you interpret the information। Many of the times in our office, a difficult employee may looks like a problem to one leader, and the same employee may look like a feedback signal to the another. That is why I always say self-awareness becomes so powerful. एक एग्जाम्पल देती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला जी को देखते हैं। जब सत्य नडेला जी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने, तो उन्होंने सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी पर फोकस नहीं किया, उन्होंने कल्चर और माइंडसेट पर भी फोकस किया। आप सब जानते हैं, उन्होंने एक पावरफुल शिफ्ट मैसेज इनकरेज किया सभी को। उन्होंने अपनी कंपनी को नो इट ऑल से लर्न इट ऑल की तरफ लेकर गए। अब नो इट ऑल क्या था? नो इट ऑल एक ऐसा लीडर है जो कहता है कि मुझे सब पता है, लेकिन लर्न इट ऑल लीडर पूछता है मुझे और क्या सीखना है। अब आपको सुनने में ये दो सिर्फ सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स का डिफरेंस लगता है, बट लीडरशिप में ये दोनों माइंडसेट्स की पूरी डायरेक्शन बदल देते हैं। बिकॉज जब लीडर सोचता है ना कि मुझे सब पता है, तो वो फीडबैक को क्रिटिसिज्म समझने लगता है, क्वेश्चंस को चैलेंज समझता है और मिस्टेक को हाइड करने लगता है। लेकिन वही लीडर जब ये कहता है ना कि लर्न इट, तो वो समझता है कि मुझे और क्या सीखना है, तो फीडबैक थ्रेट नहीं लगते, इंफॉर्मेशन बन जाती है। मिस्टेक फेलियर नहीं होती, लर्निंग बन जाती है, और तब टीम उसको फॉलो नहीं करती, उससे लर्न करती है। और इसी को इनर सीईओ अल्केमी में आप देखेंगे कि हम माइंड, ब्रेन और सोल के साथ अलाइन करते हैं। माइंड पूछता है कि मुझे प्रूव करना है कि मैं राइट हूं। आपका ब्रेन जब ग्रोथ मोड में होता है ना, तो वो पूछता है रियलिटी मुझे क्या दिखा रही है, मुझे क्या लर्न करना है इससे। और आपकी सोल
उस समय पे एक बहुत डीपर क्वेश्चन पूछती है, क्या मैं राइट प्रूफ करने के लिए लीड कर रहा हूं या जेन्युइनली कुछ क्रिएट करने के लिए कर रहा हूं? यही इनर सीईओ अल्केमी डिफरेंस क्रिएट करती है। बिकॉज रियल लीडरशिप इज नॉट अबाउट हैविंग ऑल द आंसर्स। रियल लीडरशिप इज हैविंग द अवेयरनेस टू आस्क द बेटर क्वेश्चन। और जब आप खुद को लीड करना सीखते हैं तब आप दूसरों को ट्रूली लीड कर पाते हैं। और यही सत्य नडेला जी समझाना भी चाह रहे थे। अब आते हैं माइंड पर। माइंड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है माय डियर। माइंड मीन्स व्हाट स्टोरीज आर यू टेलिंग टू योरसेल्फ। टीम में कई बार कोई एम्प्लॉय, कोई कलीग रिस्पॉन्ड नहीं करता मैसेज को, तो हमारा माइंड स्टार्ट इमीडिएटली क्रिएटिंग द स्टोरीज। ही डजंट रेस्पेक्ट मी। क्लाइंट एक प्रपोजल को रिजेक्ट करता है और हमारा माइंड फिर से एक स्टोरी बना देता है, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। किसी और कलीग को, किसी मेंबर को प्रमोशन मिल जाता है और हमारा माइंड फिर से स्टोरी बनाने लग जाता है, शी गॉट इट बिकॉज शी हैड बेटर कनेक्शन। हैव यू नोटिस समथिंग माय डियर? इवेंट एक है बट हर बार स्टोरी डिफरेंट है। एंड लीडरशिप बिगिंस व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन व्हाट हैपेंड एंड व्हाट यू डिसाइड इट मीन्स। दैट गैप इज वेरी पावरफुल माय डियर, बिकॉज इन दैट गैप ओनली यू गेट अ चॉइस। रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, एंड दैट इज द इमोशनल मैच्योरिटी। A self-led leader doesn't have fewer emotions. In fact, they have a better relationship with their emotions. ये सबसे इंपॉर्टेंट है लीडरशिप में। आपके इमोशंस के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है? A good leader can say I am angry without becoming anger. He can say I am disappointed without becoming disappointed. I am afraid without allowing fear to make every decision. It is very important to learn, my dear, emotion is information. It doesn't have to become your instructions. After the brain or the mind, let moves to the soul dimension. अब यहाँ सोल से मेरा मतलब कोई एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है। Here I'm just talking about the purpose, the vision, the values, the alignment, the meaning of your life, and the deeper reason behind your leadership. Because you know that success without meaning can become exhausting. बहुत बार हमारी लाइफ में होता है, हमें प्रमोशन मिल रही होती है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, टीम भी बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, डेजिग्नेशन भी बढ़ रही है, बट इनसाइड यू आर आस्किंग, इज दिस रियली व्हाट आई वांटेड? एंड दिस इज वेयर द सेल्फ लीडरशिप बिकम्स डीपर, माय डियर। आपको सिर्फ ये नहीं पूछना है कि व्हाट डू आई वांट टू अचीव। यू शुड आस्क योरसेल्फ, व्हाई डज दिस मैटर टू मी? व्हाट काइंड ऑफ लीडर डू आई वांट टू बिकम? व्हाट शुड माय सक्सेस स्टैंड फॉर? और इसको बहुत अच्छे से मैंने जो सीखा, दैट इज फ्रॉम इंदिरा नूई मैम। उनकी जर्नी में लीडरशिप का एक बहुत पावरफुल लेसन उन्होंने दिया। फॉर्मर पेप्सिको की सीईओ रही इंदिरा नूई। उन्होंने अपनी लीडरशिप फिलॉसफी को एक सिंपल बट पावरफुल आइडिया से डिफाइन किया है। उन्होंने हमेशा कहा परफॉर्मेंस विद पर्पस। मतलब सिर्फ नंबर्स अचीव करना नहीं है, परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस को पर्पस, पीपल और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के साथ कनेक्ट करना है। और यहीं से लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। टारगेट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए, वी नीड रिजल्ट्स। बट एक पॉइंट पर आकर रुक जाना और खुद से ये पूछना भी जरूरी है कि मैं जो अचीव कर रहा हूं उस प्रोसेस में मैं खुद क्या बन रहा हूं। बिकॉज लीडरशिप सिर्फ ये नहीं पूछती मैंने कितना अचीव किया, लीडरशिप ये भी पूछती है मैंने किस प्राइस पर अचीव किया। क्या सक्सेस के साथ मेरी पीस गई? क्या ग्रोथ के साथ मेरी रिलेशनशिप वीक हो गई? क्या पोजीशन बढ़ी लेकिन पेशेंस कम हो गया? क्या इनकम बढ़ी लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन कम हो गया? यही है इनर सीईओ अल्केमी का डीपर क्वेश्चन। बिकॉज आउटर सक्सेस टेल्स यू व्हाट यू अचीव्ड, बट इनर सीईओ टेल्स यू व्हाट यू बिकेम व्हाइल अचीविंग इट। और असली लीडरशिप तभी शुरू होती है जब परफॉर्मेंस और पर्पस एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं। Because success is not about reaching at the top, my dear. It is about the person who you become on the way. और यहीं से आता है मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट, द इनर सीईओ अल्केमी। हम सबके अंदर एक सीईओ है, सबके अंदर पोटेंशियल है। वो एक इंटरनल वॉइस है जो हमारे डिसीजंस लेती है। क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज पर फोकस करना है, कहाँ यस बोलना है, कहाँ नो बोलना है, प्रेशर में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे अंदर हमारा इनर सीईओ है एक्चुअली लीड नहीं कर रहा होगा, हमारे अंदर कोई और स्टीयरिंग पकड़ लेता है। यू नो व्हाट, कभी कभी वो फियर होता है जिसके हाथ में स्टीयरिंग होता है, कभी वो ईगो बन जाती है, कभी कंपटीशन, कभी एंगर, कभी पीपल प्लीजिंग, कभी पास्ट का कोई एक्सपीरियंस, और फिर हम कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों स्टक हूं, मैं कहां पर स्टक हूं। सो माय डियर, मे बी प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी है ही नहीं,
मे बी प्रॉब्लम ये है कि आपका इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी करंट लाइफ और लीडरशिप के अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं हो रहा है। इसीलिए ऐसा होता है कि हमारे पास नॉलेज तो है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, रिसोर्सेज भी हैं, फिर भी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। हम बिजी तो बहुत हैं, बट फिर भी हम प्रोडक्टिव नहीं है। हम डिसीजंस तो ले रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस उतनी नहीं हो रही। बहुत सारे डिसीजंस लेते जा रहे हैं, लेकिन अंदर से पीस नहीं है। हम सक्सेसफुल दिख तो रहे हैं, बट खुद के साथ कनेक्टेड फील नहीं करते। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि लीडरशिप को 3 लेवल पर समझना बहुत जरूरी है: माइंड, ब्रेन एंड सोल। यू कैन नॉट एक्सेल इन योर लाइफ विद जस्ट वन ऑफ द थिंग। यू हैव टू बी परफॉर्म विद योर माइंड, ब्रेन एंड सोल। आपका इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपका माइंड हमेशा आपको पुश करता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरे इमोशंस मेरे डिसीजन को कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारा ब्रेन हमेशा इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करता है कि मैं किस चीज पर फोकस कर रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहा हूँ, प्रेशर में मेरा डिसीजन मेकिंग कैसा है। और सोल हमेशा से हमसे यही पूछती है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है, मैं किस तरह का लीडर बनना चाहता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जब आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपका सोल सब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तब लीडरशिप सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं रहती, इट बिकम कॉन्शियस लीडरशिप। अब क्वेश्चन आता है कि मैम कैसे बने कॉन्शियस लीडरशिप में, कैसे जाएं, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझें। तो माय डियर, जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपनी टीम को इंप्रूव करने के बारे में सोच रहे हो ना, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के बारे में सोच रहे हो, या अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो उससे पहले खुद से 5 क्वेश्चंस जरूर पूछें। और ये पांचों को मैं कहती हूँ फेसेस। F stands for focus, A stands for alignment, C stands for clarity, E stands for emotional resilience and S stands for self leadership. ये एक बहुत ही अच्छी असेसमेंट है फेसेस, फोकस। एक लीडर को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि क्या मैं अपना अटेंशन कंट्रोल कर सकता हूँ, या हर नोटिफिकेशन, हर ईमेल, हर व्हाट्सएप मैसेज, हर न्यू अपॉर्चुनिटी मेरी डायरेक्शन चेंज कर देती है। रिमेंबर माय डियर, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना सेम थिंग नहीं है। आपका कैलेंडर फुल हो सकता है, बट क्या आपका डे मीनिंगफुली प्रोग्रेस कर रहा है? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर, अलाइनमेंट। और यहां पर आते हैं सबसे डीप क्वेश्चंस जो एक लीडर को अपने आप से पूछने चाहिए। क्या मेरी लाइफ और मेरी लीडरशिप वैल्यूज एक साथ अलाइंड है? मैं जो बोलता हूं, क्या मैं वैसे ही डिसीजंस भी लेता हूं? मैं जो अचीव करना चाहता हूं, क्या मेरी डेली हैबिट्स मुझे उस डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जो सक्सेस मैं क्रिएट करना चाहती हूँ या चाह रहा हूँ, वो एक्चुअली मेरे लिए मीनिंगफुल भी है? बिकॉज कभी कभी हम सक्सेस की लेडर पर बहुत एफिशिएंटली क्लाइम कर रहे होते हैं माय डियर, बट लेटर वी विल रियलाइज, ओ, लेडर ही रॉन्ग वॉल पर लगी हुई थी। दैट इज वाई द सेल्फ लीडरशिप मैटर्स माय डियर। क्लैरिटी, क्या मुझे एक्चुअली पता है कि मुझे क्या चाहिए? जब सब कुछ अर्जेंट लग रहा हो, क्या मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्या? बिकॉज अगर लीडर खुद ही कंफ्यूज्ड है, तो टीम को डायरेक्शन कैसे मिलेगी माय डियर? अनदर फैक्टर, इमोशनल रेजिलियंस। यहां पर लीडर अपने आप से पूछता है कि जब सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं होती, तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ? क्या मैं इमीडिएटली रिएक्ट करता हूँ या मैं पोज करता हूँ? बिकॉज लीडरशिप का रियल टेस्ट तब नहीं होता जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है। लीडरशिप का रियल टेस्ट प्रेशर में होता है। जब क्लाइंट रिजेक्ट कर दे, जब एम्प्लॉइज मिस्टेक करें, जब रेवेन्यू डाउन हो जाए, सेल्स टारगेट ना पूरे हो, जब प्लान फेल हो जाए। और एग्जैक्टली उस मूवमेंट में आपका इमोशनल स्टेट आपकी लीडरशिप की क्वालिटी डिसाइड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सेल्फ लीडरशिप। यहां पर लीडर को खुद पूछना चाहिए कि क्या मैं खुद वो करता हूं जो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करता हूं? बहुत बार लीडर्स अपनी टीम से पंक्चुअलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, बट क्या वो खुद पंक्चुअल है? एज अ लीडर मैं ऑनरशिप एक्सपेक्ट करता हूं, बट क्या मैं मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं? बहुत बार हम टीम से लर्निंग एक्सपेक्ट करते हैं, बट क्या हम खुद सेल्फ लर्निंग करते हैं? एक लीडर बहुत बार वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता है, क्या मैं खुद बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता हूं? और जब हम अपने आप से ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं, यही है सेल्फ लीडरशिप। बिकॉज माय डियर, योर टीम डजंट जस्ट हियर योर लीडरशिप, दे एक्सपीरियंस इट। दे फॉलो यू बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, नॉट बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स। तो मैं आज आपको एक सिंपल थॉट के साथ लीव करना चाहती हूँ। द हार्डेस्ट पर्सन यू विल लीड इज योरसेल्फ। दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देना इजी है, टीम को गोल्स देना इजी है, स्ट्रैटेजी बनाना इजी है, लेकिन खुद को डिसिप्लिन करना डिफिकल्ट है। खुद के इमोशंस को समझना डिफिकल्ट है, खुद के ईगो को चैलेंज करना डिफिकल्ट है, खुद से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछना मुश्किल है। और सबसे डिफिकल्ट काम पता है क्या है? जब कोई देख नहीं रहा होता, तब भी अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंगली बिहेव करना। बिकॉज योर डेजिग्नेशन कैन गिव यू अथॉरिटी माय डियर, बट सेल्फ लीडरशिप गिव्स यू क्रेडिबिलिटी।
आपकी पोजीशन लोगों को आपकी बात सुनने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन आपका करेक्टर लोगों को आप पर ट्रस्ट करने के लिए इंस्पायर करता है. सो बिफोर यू आस्क हाउ आई कैन बिकम अ बेटर लीडर, मे बी यू शुड ट्राई टू आस्क यूर सेल्फ, मैं खुद को कितना अच्छा लीड कर रहा हूँ. और आप जब घर जाएं या अपना लैपटॉप क्लोज करें, सिर्फ 5 मिनट के लिए खुद से पूछना, मेरे डिसीजंस को आज कौन लीड कर रहा था? फियर, ईगो, प्रेशर, कंपैरिजन, या फिर योर इनर सीईओ? बिकॉज जब आप खुद को लीड करना सीखते हो तो आपको हर वक्त लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती. आपकी क्लैरिटी डायरेक्शन देती है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी एक सेफ्टी क्रिएट करती है, आपका फोकस मोमेंटम क्रिएट करता है और आपकी वैल्यूज ट्रस्ट क्रिएट करने लगती हैं. एंड देन आपका पर्पस इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है. दिस इज व्हाट सेल्फ लीडरशिप इज ऑल अबाउट. And this is where the great leadership actually begins. And always remember the one thing, my dear, you don't need to become someone new. You only need to remember who you are and lead from there. आपको सिर्फ अपने आप को याद रखना है, अपनी क्लैरिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वैल्यूज को, अपने पर्पस को, and then lead from within. Because the greatest leader you will ever become will first have to learn how to lead you. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सेल्फ लीडरशिप को समझना चाहते हैं और इसके साथ अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं. थैंक यू.